गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आप सब बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, करेक्ट? सो एज वी वर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, एक्सप्लेनेशन वाज कंप्लीट। हमारा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो गया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और we are going to study the PDF, that is the question and answer part, exercise part, that is word meaning part of the same chapter. Okay, so moving on with the first section, that is word meanings. Now pay attention to this. The first meaning is recall. रिकॉल का क्या मतलब होता है? इट इज रिमेम्बर, किसी चीज को वापस से याद करना, दैट इज रिमेम्बर। देन कम्स सैक्रिफाइस। आपने हिंदी में सुना होगा ना, कोई किसी के लिए कोई त्याग करता है, बलिदान करता है, दैट इज नोन एज सैक्रिफाइस, दैट इज टू गिव अप समथिंग फॉर समवन और समबडी। Then comes third one, the slaves. Slaves is to work for others who own us. That is, you are owned by someone और आप उसके लिए नौकरों की तरह काम करते हो. That is the slaves. जो आपके ऊपर we can say आपको टॉर्चर करके आपसे काम करवा ले या किसी भी तरीके से you are bound to work for that person. That is slaves. आप slaves हो जाते हो वहां पे. Then comes subdue. Subdue is to defeat somebody. किसी को defeat करना. ओके, देन कम्स डेस्टिनी. डेस्टिनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाग्य, दैट इज जो भाग्य में लिखा है वो होता है, दैट इज समथिंग दैट इज टू हैपन टू अस, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टू अस इन अ डिस्टाइन्ड टाइम. अबैंडन. अबैंडन इज टू लीव. किसी चीज को अबैंडन कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, दैट इज टू लीव. इनएविटेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इट इज डेथ, दैट whoever is born it is inevitable to escape the death. Who has been born, जो born हुए हैं, has to die one or the other day, but we do not have a fixed day. Okay, so inevitable, that cannot be avoided, जिसे avoid नहीं किया जा सकता. Incapable, that is not able to, we are not able to do something, that is we are incapable of doing something. So the meaning of incapable is not able to. Then comes ancient. Ancient हमें पता है प्राचीन, जिसे हम पुराना भी बोलते हैं. So what is the meaning of ancient? It is old. Then comes revolted. Revolted हमें पता, हम revolutions बोलते हैं, revolts बोलते हैं, वो क्या होते हैं? विद्रोह होते हैं, ठीक है. So revolt itself is known as rebel. Rebel against someone or rebel against somebody, that is rebel. So the meaning of revolted is to rebel, okay, against someone or something. Then moving on to the question answer, first of all let us see the comprehension check which is on the page number 45 of your book. Now look at the picture and recall the opening lines of the original song in Hindi. We know कि लता मंगेशकर जी का ग्लिम्स देखा था हमने. She was singing the song ऐ मेरे वतन के लोगों वाला. आपको रिमेम्बर होगा द टाइम आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने आपको बताया था. In that one picture, who is the singer? And who else do you see in this picture? और कौन कौन प्रेजेंट थे उस पिक्चर में जो आप उनको विजुअलाइज कर पा रहे थे? So the answer is Lata Mangeshkar is the singer. We knew, हमने पढ़ा था. And sitting at the back or standing at the back, who other people were being visualized in the glimpse? That is Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Lal Bahadur Shastri were present in the picture. That you can see looking at the picture, आप इस चीज को जज कर पाओगे. Then question number 2, that is in the picture 2. What do you understand by company's superior weapons? Company के superior weapons को यहाँ पे refer किया गया था. So what are the superior weapons? So by the superior weapons, I understand that is it's being talked about rifles, by guns and by hand grenades, etc. Okay, so rifles, guns and hand grenades and etc. many more, they were the superior weapons. That is referred to as company's superior weapons. Then question number 3, who is an artisan and why do you think the artisans suffer? In the picture number 3, it was about the, we can say, the pitiable condition of the artisan. So who is an artisan? कौन होता है artisan? And why do you think the artisan suffered the most? So answer is the artisan is a person who makes things skillfully, especially with his or her own hand. कलाकार लोग होते हैं ना जो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं. So basically artisans वही person होते हैं जो चीजों को बहुत ही skillfully अपने हाथों से बनाते हैं
And why do you think they suffered? They suffered because the companies' laws crippled the Indian industries. Because the companies के जो laws थे ना, they have crippled the Indian industries. They have finished off the Indian industries, and Indian industries were on the verge to die. Then comes the fourth question, that is, which picture according to you reveals the first spark of the fire of revolt? कौन सी पिक्चर थी? आपने 9 पिक्चर्स किए थे इसमें, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू वो रिवील करता है द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? दैट इज जो हमने स्पार्क वाला किया था, दैट इज पिक्चर 7 यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू मी रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट. Okay, picture number 7 is the answer to this question. That is the first spark of the fire of revolt. Then we come to the section number 3, that is textbook questions. In that, working with the text. Very interesting questions. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत शॉर्ट-साइटेड थे अपनी अप्रोच में टू द इवेंट्स ऑफ 1757? जब वो इवेंट्स देखते थे 1757 के, do you think they were short-sighted in their approach? Yes, they were short-sighted. Yes, वो short-sighted थे in their approach to the events of 1757. How come? Yes, they were short-sighted because they had rivalries. उनकी rivalries हो जाती थी. They took help of the British to defeat one another. वो एक दूसरे को ही defeat करके Britishers की ही help ले लेते थे उसमें. That is why we can see कि वो बहुत ही short-sighted थे. And yes, we are with this fact. Yes, they were short-sighted. Question number 2, how did the East India Company subdue the Indian princes? East India Company ने कैसे defeat किया Indian princes को? The rivalries of Indian princes helped the East India Company to subdue them easily one by one. Sometimes क्या होता है, आप किसी से बदला लेना चाहते हो, so अगर आप सामने वाले दो फ्रेंड्स को ही आप डिवाइड कर दोगे, उन्हीं को ही आप एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ला दोगे, तो आप उस सिचुएशन का बेनिफिट बहुत अच्छे से ले सकोगे. तो सेम थिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किया. इन्होंने क्या किया, जो राइवलरीज चल रही थी ना इंडियन प्रिंसेस के बीच में, उसी राइवलरीज ने इन ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया कि वो डिफीट कर दें उनको इजीली वन बाय वन, वन आफ्टर द अदर. And so this was the answer to the question that how did East India Company subdue the Indian princes? The rivalries of the Indian princes itself helped the East India Company to subdue them easily, and that too one after the other, one by one. Now question number 3, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle. Now you have to quote the words used by Ram Mohan Roy. जिन वर्ड से वो ये हमें बता रहे हैं that every religion, की हर जो religion है ना, वो कैसा भी हो, कितना भी अलग हो, but ultimately वो same principles को teach करता है. He said, उन्होंने कहा. Now these are the words said by Ram Mohan Roy. Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Cows कितनी भी different color की हो, but milk उन सबका जो होता है वो same color का होता है. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अलग अलग रिलीजन के जो टीचर्स होते हैं ना, वो उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट जो एसेंस होता है ना हर रिलीजन का, जो हर रिलीजन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो वो चीज आप लोगों के अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं, जो वो चीज आप लोगों के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वो क्या होता है? द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. Now the question number 4, in what ways did the British officers exploit Indians? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किस तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया था? The British officers drew big salaries and also made fortune in private businesses. ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज ड्रू की एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत फॉर्चून भी कमाया इन देयर प्राइवेट बिजनेस. They imposed heavy taxes on farmers and fortified their fields. And इन्होंने क्या किया, फार्मर्स के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा लिया और उनकी फील्ड्स जो थी वो अपने कंट्रोल में ले ली, अपने कब्जे में ले ली, उनसे छीन ली, या उनसे किसी भी वे से जब वो टैक्स नहीं कर पाते थे तो उनका कंट्रोल, उनका चार्ज पूरा उन्होंने खुद ले लिया, उनसे वो पूरी उनकी लैंड ब्रिटिश
जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ले ली। देयर पॉलिसीज क्रिपल्ड इंडियन आर्टिसंस, उनकी पॉलिसीज ने इंडियंस को और स्पेशली जो आर्टिसंस थे उनको बिल्कुल क्रिपल कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। दे गेव इंडियंस पिटी जॉब्स अंडर देम, वो बहुत ही पिटी जॉब्स देते थे उनको अंडर देम, अपने अंडर, एंड दे गेव पिटियंस, बहुत कम पैसे देते थे उनको, एंड स्लो प्रमोशंस टू इंडियन सोल्जर, और इंडियन सोल्जर्स को जो प्रमोशंस मिलते थे वो भी बहुत स्लो मिलते थे। Now you have to name these people in question number 5, that is the ruler who fought pitch battles against the British and died fighting. ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने पिच बैटल्स फाइट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश और फाइट करते हुए ही वो डाई हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी? दैट इज टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। सो द नेम ऑफ द रूलर इज टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। Secondly, name the person who wanted to reform the society. उन पर्सन का नाम बताओ जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, जो उसको चेंज करना चाहते थे, कुछ बहुत बेटर चेंजेस लाना चाहते थे सोसाइटी में। दैट इज राम मोहन रॉय। ओके, क्या नाम था उनका? राम मोहन रॉय। The person who recommended the introduction of English education in India, वो पर्सन जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन रिकमेंड किया इन इंडिया। The name of the person is मैक्यूले। क्या नाम था उनका? मैक्यूले। Now the fourth one is two popular leaders who led the revolt. चॉइसेस में वेरी, सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है। आपको दो पॉपुलर लीडर्स बताने हैं जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। सो वन इज पेशवा नाना साहब एंड अदर इज तात्या तोपे। सो फर्स्ट वन का क्या नाम है? पेशवा नाना साहेब, एंड द सेकंड नेम इज तात्या तोपे। Okay, now we'll move to the question number 6, that is mention examples of social practices prevailing then. आप ऐसे एग्जाम्पल्स दो वो सोशल प्रैक्टिसेस की जो उस समय में बहुत, हम बोलेंगे, लार्ज स्केल पे प्रिवेल होती थी। दैट इज देयर वर टू सोशल प्रैक्टिसेस, वन इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, सेकंड इज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, सेकंड क्वेश्चन इज दो ऑप्रेसिव पॉलिसीज बताओ ब्रिटिश की। ठीक है, फर्स्ट इज द इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। इंडियंस का बिना ट्रायल लिए उन्हें जेल में डाल दो, ये एक ऑप्रेसिव पॉलिसी थी। कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं, पकड़ो और जेल में डाल दो इंडियंस को। सेकेंड इज द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनी लूट, ब्रिटिश कंपनीज जो थी ना उन्होंने लूट मचा रखी थी एंड वो उस पर खूब प्रॉस्पर कर रहे थे, वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और इसी के कारण क्या हुआ, ऑन दी अदर हैंड जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी दे वर ऑन द वर्ज टू डाई, कि वो खत्म होनी शुरू हो गई थी, दे बिगेन टू डाई। थर्ड क्वेश्चन इज टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, ऐसे दो वेज बताओ जिससे कॉमन पीपल ने बहुत सफर किया अंडर द British officers or the British rule. First is heavy taxes on farmers lead them to abandon their field. Heavy taxes जो farmers पे लगा दिए गए थे ना, उससे क्या हुआ, वो लोग मजबूर हो गए, they have to leave their fields, उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े। ठीक है, second one is the British policies ruined the expert artisans and their business. जो British policies आई उन्होंने रूइन कर दिया द एक्सपर्ट आर्टिसंस को एंड उनके बिजनेस को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लीड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 रीजंस आपको बताने हैं जिसने लीड किया, वो ऐसे रीजंस जो डिसकंटेंट के थे और जिस डिसकंटेंट ने लीड किया टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इज इंडियन सोल्जर्स वर गिवन पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, की इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही पिटी सैलरीज, बहुत कम सैलरीज दी जाती थी एंड बहुत स्लो प्रमोशंस दिए जाते थे। सेकेंड वन इज द ग्रीस ऑन द बुलेट द इंडियन सोल्जर्स हैड टू बाइट वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि जो ग्रीस लगा हुआ होता था ना बुलेट्स के ऊपर जो इंडियन सोल्जर्स को दी जाती थी और जिसको वो अपने मुंह से बाइट करते थे, वो किससे बनी हुई थी? वो ग्रीस जो थी वो फैट ऑफ काउज एंड पिग से बनी हुई थी, और बहुत से ब्रेव ब्राह्मण सोल्जर्स थे, तो सोचो उनके लिए ये कितनी गलत चीज हो रही थी उनके साथ में। दिस वाज अ काइंड ऑफ चीटिंग, हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स उनको डिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, उनको धोखा दे रहे थे। सो दैट इज व्हाई ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिस्कंटेंट लेके आया, ये जो चीटिंग थी ना, इट ब्रॉट अ डिस्कंटेंट अमंग देम। थर्ड वन इज टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट, और ये जो टैक्सेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहे इसने पीजेंट्स को बुरी तरह से फिनिश कर दिया, इट रूइंड द पीजेंट्स।
And the fourth one, that is the last reason for the discontent, was they had taken away the kingdom from many former rulers. Britishers ने बहुत से former rulers से उनके साम्राज्य, उनके kingdoms ले लिए थे. So these all four reasons were the reasons for the discontent, and वो discontent के reasons that lead to the 1857 War of Independence. So we can say with this, the PDF of this chapter is well clear to you. Okay, and after this now आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज इट नाइसली, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिवाइज इट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. ओके, सो नाउ वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new chapter. So till then, keep studying and stay safe.